Hi student, welcome to all of you. Today we are going to see the one important poem, The Tale of Custard the Dragon. Class 10th poem number, lesson number 6. That madam, 6 number unit की जो poem है, that poem we are going to be talk about this one. Here the poem is given for you. Tale of Custard the Dragon. Tale of Custard the Dragon is very simple and very energetic poem, and which shows the most important things in the life to us. What exactly the philosophical matter in the poem and how the poem is there. The main character is Belinda. Belinda is the main character here, the one protagonist of the poem, but still there are some important characters, and what exactly they want to tell through this poem. Let's start to see it. It's American poem, so it will be better for you understand, and I hope whatever I will tell to you, you will respond it properly and you will keep each and everything in your mind. So let's start the poem. This poem is written in a style of a ballad. Friends, ballad is a heroic drama. Ballad is like a heroic drama where we talk about someone's heroic act, someone's great things around us, and legendary things we are talking into the ballad, a song or poem that tells the story. Okay, you must be familiar with the ballads that narrate the tales of courage or heroism. तो आपने पहले इससे पहले ballad तो सुनी होगी. You have listened before that, and ballads are that, जैसे कि in Marathi it is called as a पोवाड़ा. पोवाड़ा कहा जाता है. शायरी का जो होती है शाहिरी, नॉट अ शायरी. शायर इज़ डिफरेंट. इन महाराष्ट्र इट इज़ कॉल्ड शाहिरी. शाहिर जो होते हैं, जो गाते हैं, एंड इट इज़ द legendary song of any person. That legendary song is here we are going to see about. So you must be familiar with the ballad that narrate tales of the courage or heroism. Yes, this is a famous ballad closely to the parody. It is like a parody one. Now ballad is a courageous one or parody. Parody ये बिल्कुल इससे अलग होती है, जो courageous नहीं होती है. It don't say the courage. It shows something different than others. तो चलिए देखते हैं what exactly into the poem. Belinda live in a little white house. Now see here a comparison is with, थोड़ा सा हम यहाँ पे फ्रीडम लेंगे, लिबरल कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे. तो यहाँ सिर्फ बेलिंडा है, 4 कैरेक्टर्स हैं, एंड दिस 4 कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट टू द अमेरिकन सोसाइटी. और दिस वी विल टेक द इमेजिनरी थिंग फॉर देम. यहाँ सिर्फ हम ऐसा डायरेक्टली पोएम टू पोएम नहीं जाएंगे, फिर भी एक सोशल कॉन्टेक्स्ट हम देखेंगे. तो सी एवरी पोएम हैज़ द सोशल एस्पेक्ट्स, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स, देन ऑल हिस्टोरिकल, एंड ऑल द थिंग्स ऑलवेज आर इन द पोएम. सो जस्ट सी द फर्स्ट पैराग्राफ इज देयर. बेलिंडा लिव इन द लिटिल वाइट हाउस. जो बेलिंडा है वो एक घर में रहती है, छोटा सा वाइट हाउस है. दिस वाइट हाउस इज ऑल्सो कैन बी रेफर टू द where American Senate House, President's House. So Belinda is the who is the owner of this house and owner of this all the animals, with a little black kitten. एक छोटी black kitten है, a little grey mouse, and little yellow dog, and little red wagon. Okay, and a really truly little pet dragon. अब ये रूलियो प्रिलियो ट्रूलियो ऐसे कोई वर्ड वगैरह है नहीं. ओके, रियली एंड ट्रूली ये वर्ड्स हैं, लेकिन उसको मॉडिफाइड करके यहाँ पे यूज़ किया हुआ है. तो दिस इज़ वन पैराडॉक्सिकल आइडियाज़. और रियलियो एंड ट्रूलियो लिटल पेट ड्रैगन. तो सी 5 यहाँ पे उसके साथ रहते हैं. मीन्स नियर अबाउट 6 कैरेक्टर्स आर इन टू द पोएम. ब्लैक किटन 1, लिटल ग्रे माउस, और लिटल ग्रे येलो डॉग, एंड लिटल रेड वैगन. ऐसे 4 कैरेक्टर्स, और वैगन एंड लिटल पेट ड्रैगन
and the Belinda. These are the 6 characters in the poem. Now the name of the little black kitten. See the name of now the name of little black kitten was Ink. जो ब्लैक किटन है उसका नाम है इंक. लेड द लिटल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम अ ब्लिंक. तो माउस को वो कहती है ब्लिंक. द लिटल येलो डॉग वॉज अ शार्प एज अ मस्टर्ड, बट द ड्रैगन वॉज कोवार्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड. ओके, हियर द डॉग इज वन शार्प एंड मस्टर्ड, डेफिनेटली. ड्रैगन शी कॉल्ड एज अ कोवार्ड. अब ये ड्रैगन, सिंपली दिस ड्रैगन इज representing the society, a lower class of the society, which having the lot of powers, which can be change the world, change the power, change the kingship, change everything, change the system, but they are like a cowards only. So this mouse like people are there, blink, ink like people also there, kitten also like there, dogs, those are only showing their goodness, showing their power only, and they can't do anything. So what happened here? Custard, the dragon, had big sharp teeth. जो कस्टर्ड नाम का जो ड्रैगन है उससे अब ये सब के नाम रखे हुए, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, कस्टर्ड. ओके, तो कस्टर्ड जो ड्रैगन है उसके शार्प टीथ है, स्पाइक ऑन द टॉप ऑफ हिम एंड स्केल अंडरनीथ. उसकी जो चमड़ी के अंदर है बड़े बड़े नाखून हैं स्केल के अंदर, एंड नाखून भी बड़े बड़े स्पाइक है बॉडी के ऊपर. माउथ लाइक ए फायर प्लेस, चिमनी फॉर द नोज. माउथ है जो फायर प्लेस की तरह है जिसमें से फायर निकलती है, और नोज़ जिसमें से स्मोक निकलती है. ड्यू टू दैट, बट स्टिल ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज. और उसके टोज में, उसकी उंगलियों में डैगर है. डैगर मीन्स यो द खंजर जिसे हम कहते हैं चाकू, निफ, डैगर है. बट स्टिल इट इज़ वेरी फियरफुल वन, कोवार्ड है. बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स. अब बेलिंडा खुद इतनी ब्रेव है, कितनी ताकतवर है. दिस इज़ अ किंग. बेलिंडा इज लाइक शी इज़ कंप्लीट फुल ऑफ करेजियस. अब जैसे यहाँ बियर का बैरल क्यों किया है? When the person take the beer or something wine, he became the more courageous, more brave, as generally he is into the general people. And the ink and the blink chase lion down the stairs. और ink और blink जो है वो इतने पावरफुल है कि they can chase the lion down the stair. स्टेयर के बिल्कुल लाइन की तरफ, वो स्टेयर की तरफ खड़े रहते हैं, and they are keep the house safe. Mustard was as brave as a tiger in the rage. मस्टर्ड इतना ब्रेव है जिस तरह कि कोई टाइगर केज में बंद होता है, जितना पावरफुल वो होता है, जितना वो पावरफुल होता है उतना ही वो भी पावरफुल है. मस्टर्ड was as brave as a tiger in the rage, but custard cried for a nice safe cage. लेकिन बेचारा जो ड्रैगन है, कस्टर्ड है, ही इज़ always cried, and he is very coward and always keep himself into the safe place. He never come anyhow outside, and he always sit there only. Belinda tickled him. बेलिंडा उसे बार बार ताने मारती रहती है. She tickled him unmerciful. और जो बेलिंडा है उसे बार बार उसे अनमर्सीफुली उसे टिकल करती है, बार बार उसे ताने मारती रहती है. इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, दे रूडली कॉल हिम परसिवल. और ये जो सारे लोग हैं, इंक है, ब्लिंक है, मस्टर्ड है, ये सारे उसके साथ बहुत ही रूडली बात करते हैं और रूडली बिहेवियर करते हैं. बिकॉज ऑफ हिज नॉर्मल बिहेवियर, इज द वेरी पोलाइट बिहेवियर, दे आर डूइंग दिस. They all sat laughing in the little red wagon at the Trulio cowardly dragon. और जब वो वैगन में बैठते हैं, बाहर बैठकर घर में कभी भी,
दे ऑलवेज लाफ एट द ड्रैगन। सच में इतने हंसते उसके ऊपर कि वो मजाक लेते उसका। बेलिंडा गिगल टिल द शुक द हाउस एंड बेलिंडा सेड weak which is giggling for the mouse. Ink and Mustard rudely asked his age. Wayne Custer cried for a nice safe cage. और बेलिंडा गिगल टिल द शी शुक द हाउस, और उससे वो हमेशा दम देती रहती है, हमेशा उसे ऑलवेज शी इज़ डूइंग, पूरा घर हिला देती है। एंड ब्लिंक सेड वीक, ब्लिंक उसे कहते हैं कि ये वीक है एकदम। विच इज़ गिंगलिंग फॉर द माउस, और माउस के लिए वो गिंगलिंग है। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क हिज एज, और इंक और मस्टर्ड जो है, बिल्ली और कुत्ता, दोनों से मजाक में उसका एज पूछते हैं, भाई तेरा एज क्या है, यू आर वेरी स्मॉल चाइल्ड लाइक। तो दे आर टेकिंग comment, they are taking teasing to that custard. Wayne Custer cried for the nice safe place, और ये सब उसकी मज़ा लेती, लेकिन वो बेचारा अपने अपनी सेफ प्लेस ढूंढता रहता है, अपनी अपनी जगह ढूंढता रहता है। ही wanted to live on the safe place, he don't want to argue anyone, he don't want to fight to anyone. Suddenly they heard a nasty sound. अचानक से एक बार वो बड़ा वाला साउंड सुनते हैं, और कुछ नास्टी साउंड, वेरी डेंजरस साउंड। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड एंड दे ऑल लुक अराउंड, और मस्टर्ड से जोर से एकदम चिल्लाया, और उसने आजू बाजू में देखा। म्याउच क्राइड द इंक एंड ओ क्राइड बेलिंडा, और इतना ही नहीं, म्याउच करके वो इंक कई डर के मारे चुप गई, और बेलिंडा भी क्राइड चली गई। फॉर देयर वॉज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो, for there was a pirate climbing in the window. उस घर में एक पायरेट घुस गया, चोर घुस गए, कुछ चोर घर में अचानक से घुस गए, और यही बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, सबके सब डर के मारे भाग गए। बट अ पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, दोनों हाथों में, राइट वाले हाथ में भी पिस्तौल है, लेफ्ट वाले हाथ में भी पिस्तौल है, दोनों हाथों में पिस्तौल लेकर वो पायरेट घुस गया अंदर। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलास ब्राइट, और उसके जो दांत थे कुछ सोने वगैरह लगाया होगा, तो उसके लिए वो ब्राइट हो रहे। His beard was black, one leg was wood, एक पैर टूटा हुआ, एक आँख ये हुई, एंड दाढ़ी वगैरह बड़ी हुई, एक बड़ा सा चोर एकदम आदमखोर जैसा। It was clear that the pirate mean no good. इसका सिंपल सा मीनिंग था कि इसके पास अगर बंदूक है, ये सब है, तो वो पायरेट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एंड बेलिंडा फेल एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, बट मस्टर्ड फ्लेड विद अ टेरिबल येल्प। अब बेलिंडा जोर जोर से चिल्लाने लग गई, फेल हो गई एकदम, डर के मारे भाग गई, जो बहुत ही करेजियस थी, बहुत ही हैविंग अ लॉट ऑफ करेज इन हर, वो भी वहाँ से भाग गई, जोर से चिल्ला रही। अब मस्टर्ड जो है उसने देखते ही वो भी भाग के टेरिबल आवाज़ करके वो भी भाग गया वहाँ से। इंक टिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, और ये इंक जो थी, बिल्ली जो बड़ी बड़ी बातें करती थी, वो वहाँ से भाग कर कहीं किचन की तरफ भाग गई, हाउस होल्ड के नीचे बर्तन के नीचे चली गई, चुप गई। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, और ये जो माउस है, लिटिल माउस ब्लिंक, ये भी बड़ी चतुराई से स्ट्रैटेजिकली बड़ी चतुराई से एक अपने माउस होल में घुस के भाग गया। बट लेकिन उसी टाइम में जंप कस्टर्ड स्नॉर्टिंग लाइक एन इंजन, और वो उस टाइम में कस्टर्ड ने उस लड़ाई में उसके सामने आके खड़ा हो गया, और इंजन जैसे अपनी मुंह से सीधे डायरेक्ट आग निकलने लगी। क्लैश इज टेल लाइक आयरन इन द ड्रैगन, और डंजियन, और उसकी जो पूछ है वो इतनी तेज़ हो गई, इतनी कड़क हो गई, आयरन जैसी, इतना डेंजरस, वो गुस्से में आ गया। विथ क्लैटर एंड द क्लैंक एंड जिंगलिंग स्क्वार्म एंड ही वेंट इन द पायरेट्स लाइक अ रॉबिन एट द वॉर्म, और ऐसा उसके सामने गया जोर से कि जैसे रॉबिन वॉर्म में जाता है। द पायरेट्स कैप्ट एट बेलिंडाज ड्रैगन,
बेलिंडा के ड्रैगन और उसमें बिल्कुल थोड़ा सा गैप था, बिल्कुल सामने ही था। अब वो गोली मारता था। एंड गल्प्ड सम ग्रॉग्स फ्रॉम हिज पॉकेट फैगन ही फायर्ड। तो उसने क्या किया, एक गोली निकाली पॉकेट में से और बंदूक में भर दी। ही फायर्ड ऑन 2 bullets but they didn't hit and Custard gobbled him every bite। और उसे 2 गोलियां चलाई, लेकिन उस 2 गोलियों का उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई कुछ नहीं हुआ। और फिर क्या था, कस्टर्ड ने यूँ देखा न ताव देखा, सीधा उसे पकड़ा और चबाना शुरू कर दिया और उसे एक एक बाइट करके खा लिया। गॉबल्ड हिम। बट हुआ ये, इतना होने के बाद भी बेलिंडा एम्ब्रेस हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम, नो वन मॉर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम। और बेलिंडा भी एम्ब्रेस्ड हो गई एंड मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड भी वहाँ से निकल पड़ा तब। नो वन मॉर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम। और किसी ने भी उस पायरेट विक्टिम के लिए मौन नहीं किया। Ink and blink in glee did Garrett around the dragon that ate the pirate। और सब आने लग गए, फिर बाकी को ये सोचने लग गए, अब इसके सामने आने के बाद फिर उसके लिए बोलने लगे, और ये इंक ब्लिंक सब बाहर आ गए, सब आ गए और फिर उसे बताते। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लाइक डॉग मस्टर्ड। सबसे पहले आया ये डॉग मस्टर्ड। I had been even twice as brave if I hadn't been flustered। अब ये आके कहता है कि मैं इतना उससे भी 2 गुना ब्रेव था, 2 गुना मैं पावरफुल हूँ। बट क्या है कि थोड़ा फ्लस्टर्ड, अगर नहीं होता तो मैं थोड़ा फ्लस्टर के लिए चला गया था। एंड अब स्पोक इंक, फिर इंक बोलते हैं कि अब स्पोक ब्लिंक। इंक ब्लिंक एक एक करके बोलने लगे कि वी हैड बीन 3 times as brave। वी थिंक, हमें लगता है कि 3 गुना हम उससे ज़्यादा पावरफुल हैं, इतनी पावर हमारे अंदर है। एंड कस्टर सेड आई क्वाइट एग्री दैट एवरीबडी इज़ ब्रेव दैन मी। हाँ ठीक है, मैं तो मानता हूँ भाई, सब कोई मुझसे ज़्यादा ही पावरफुल है, एवरीबडी इज़ वेरी ग्रेट दैन मी, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। और फिर बेलिंडा स्टिल लीव इन हर। और फिर ये क्या था, सबने मान लिया, वो मुसीबत आई तो बेचारा मान गया, ठीक है तुम ज़्यादा पावरफुल हो। वैसे ही कुछ सिचुएशन, ये सेम सिचुएशन हमारे देश में भी मतलब देश में क्या, हर देश में चलती रहती है, हर यहाँ पे चलती है। कुछ वर्ग होते हैं जो खुद कहते हैं कि हम इतने बड़े, हम उतने बड़े, लेकिन जैसे कि देश के राजनेता कहेंगे कि हम बड़े हैं, पुलिस वाले कहेंगे कि हम ये है, और कोई उद्योगपति कहता है कि मैं ये हूँ, कोई वर्ग कहता है कि मैं, वो वर्ग कहता है कि मैं। लेकिन जो देश की सच्ची सुरक्षा करते हैं वो बेचारे कुछ नहीं कहते। दे आर ऑलवेज ऑन द बॉर्डर एंड दे नेवर सेज दैट, दे ऑलवेज सेज या यू ऑल आर ब्रेव दैन अस। बेचारे सोल्जर्स, अपने सोल्जर्स वो वहाँ पे ऑन द बॉर्डर, दे आर डूइंग द सिक्योरिटी फॉर द नेशन। वो अपनी ड्यूटी करते हैं, ऐसा हम मानते हैं, लेकिन दे आर डूइंग द रियल पेट्रोल्स, दे आर डूइंग द नेशनल ड्यूटी, नेशंस देयर it's their work they are doing, but still it is, they are not showing to anyone. Such they are like dragons, they are always been silent। बेलिंडा स्टिल लिव इन हर लिटिल हाउस, वाइट हाउस। आज भी वही हाउस में रहती है बेलिंडा, विद हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस। उसके साथ वो लिटिल किटन माउस दोनों रहते हैं। द येलो डॉग रहता है, वैगन रहता है एंड और ड्रैगन, ऑल आर लिविंग देयर। बेलिंडा इज़ ब्रेव एज बैरल ऑफ फुल ऑफ बैरल फुल ऑफ बियर्स। हाँ, बेलिंडा जो है वो बियर ऑफ, जो पूरा बैरल भर जाएगा, इतनी वो ब्रेव है, डेफिनेटली है। एंड इंक ब्लिंक चेस लायन डाउन द स्टेयर। और वही इतने हैं कि एक दूसरे को इतना चेस करते कि वो मतलब लायन को भी हरा सकते, इतनी चेसिंग उसकी है। मस्टर्ड इज़ ब्रेव एज टाइगर इन द किरैग। और मस्टर्ड बहुत ब्रेव है टाइगर की तरह। एंड बट अ कस्टर्ड कीप क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज। लेकिन फिर भी ये कस्टर्ड जो है अपनी सेफ पेस के लिए क्राई करता है बेचारा। अब ये सिचुएशन हम बहुत लगा सकते हैं कि कोई देश में, किसी भी देश में ये सिचुएशन हो सकती है कि जो कंडीशन है इन द सोसाइटी कि 4 अगर वर्ग हम कर ले कि उच्च वर्ग होता है, मध्यम वर्ग होता है और तृतीय वर्ग जो होता है, तो उनके बीच ये चीज़ ज़्यादा होती है कि बेचारा ड्रैगन की तरह है, कस्टर्ड की तरह है, जो कुछ बोलते नहीं हैं, जो कुछ
रिप्लाई नहीं देते कि ठीक है हाँ भाई सब सच है, ये आप वो है। लेकिन सही समय आता है तब यही सिचुएशन हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पता चलती है कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ पब्लिक। रशियन रिवॉल्यूशन में हमें पता चलता है कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ पब्लिक। अमेरिकन रिवॉल्यूशन में पता चलता है व्हाट इज़ द पावर ऑफ पब्लिक। और ये भी पता चलता है इन 1947 इन 1942 स्टार्टेड व्हाट वी स्टार्टेड द मोमेंट इंडियन इंडिपेंडेंस मोमेंट। तो यहाँ पे पता चलता है कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ कस्टर्ड, व्हाट इज़ द पावर ऑफ कॉमन मैन। लेकिन वो फिर भी कहता है कि नहीं वो सब बड़े हैं। जब तक ये सब हम लोग जो है दे ऑल आर लाइक दिस कस्टर्ड, ये क्लस्टर की तरह है। क्योंकि ये सिर्फ बेचारे कस्टर्ड की तरह क्यों है? बिकॉज दे आर हैविंग द पावर्स but they always want a nice safe case, not safe place. This is a poem by Ogden Nash. So hope you will understand this one. These questions, okay, very simple questions are there. You can solve these questions by your own self. Thank you all of you, take care.